मुझसे हो नहीं रहा है, आई कांट डू इट, आई एम गोइंग टू गिव अप, ये मेरे लिए है नहीं, आई एम नॉट मेंट फॉर इट, मुझसे ये काम होना ही नहीं था, मेरे लिए ये काम बना ही नहीं है, ये गलत डायरेक्शन थी, आई वुड लाइक टू गिव अप, अब मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे को वो रिलीफ चाहिए। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स, ये मेंटल लैंग्वेज आपके माइंड में ज़रूर आई होगी कभी ना कभी, और खासकर तब आई होगी जब आपने किसी चीज़ को क्विट करा हो या आप करने वाले हो। मे बी यू आर इन दैट सिचुएशन राइट नाउ एंड यू आर अबाउट टू क्विट समथिंग इंपॉर्टेंट, यू आर अबाउट टू मेक अ मिस्टेक, you know it, but the voices in your head are so powerful, so logical, so consistent that you are forced to consider why should you not give up. You watch this video when you are about to give up, and I'll tell you exactly why you should not give up and how you are going to stop yourself from giving up. You have to understand the neuroscience and the psychology of giving up and of your own self-defeating thoughts. I will tell it to you in simple, no nonsense, clear words. Especially when you feel like you are going to quit, the one thing you should do is defer that decision. एक बारी just wait, stop, just wait and defer that decision. Don't take the decision right away. Allow your brain to replenish the dopamine. Just stop. Don't make that phone call. Don't write that resignation email. Don't cancel your subscription all of a sudden because you feel like it is not worth it. Wait. Let the dopamine replenish. How do you replenish dopamine? There are a few very interesting and good ways. Andrew Huberman tells you in detail from neuroscience, and I will quote some of his suggestions here. A cold shower will increase dopamine by 200%. Dark chocolate, surprisingly, increases dopamine. Exercise increases it. Spending time with your family increases it. Anything that is reward, that is healthy, increases it. But so does Instagram, so does doom scrolling, so does wasting time. That is not the type of dopamine we want. हम चाहते हैं कि हमारा dopamine release effort के साथ लिंक हो जाए, आउटकम से नहीं। वो कैसे होगा? अगर हम छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देंगे अपने आप को, छोटी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनने में बहुत क्लीशेड सा लगेगा, बट दिस इज एक्चुअली वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्विट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड लर्न्ड हेल्पलेसनेस। आपका ब्रेन फाइट बैक करना ही बंद कर देता है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस होती है। तो एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन, डॉग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा, डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया उसने। अब मुझे नहीं पता कैसे एथिकली ये जस्टिफाइड था ये एक्सपेरिमेंट करना, बट उसने किया। डॉग्स को एक्सपेरिमेंट्स दिए और कोई एस्केप की जगह नहीं छोड़ी, जस्ट शॉक देता गया, देता गया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दरवाजा खोल दिया, पर वो शॉक देता गया। द डॉग्स डिड नॉट ट्राई टू एस्केप, द डॉग्स एक्सेप्टेड द फेट। उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि यहाँ से कोई एस्केप है ही नहीं। देयर ब्रेन हैड गिवन अप, दे लर्न्ड हेल्पलेसनेस। दिस इज लर्न्ड हेल्पलेसनेस, इट इज रियल। ये हो जाती है हमारी सोसाइटी, हमारे को बम्बार्ड कर करके कभी कभी लर्न्ड हेल्पलेसनेस सिखा देती है। लर्न्ड हेल्पलेसनेस इज द नंबर वन रीजन दैट पीपल आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ अब्यूजिव रिलेशनशिप्स, दे आर नॉट एबल टू गेट आउट। देयर आर टाइम्स व्हेन गिविंग अप इज एक्चुअली अ गुड आइडिया, बट इन मोस्ट केसेस दैट आर यूजफुल दे आर नॉट। दे स्टार्ट बिलीविंग उनके पास तो एजेंसी है ही नहीं। जॉर्डन पीटरसन सेज, इफ यू आर इन हेल कीप वॉकिंग, इफ यू लाई डाउन इट बिकम्स परमानेंट। You will have to remind yourself that maybe it is learned helplessness that is pushing you, and if it is, then you diffuse it and you move on. Actually, in the Syllabus of Life Academy, which is free, we have started to do this, started to help people author their lives, started to help people recognize where they are helpless because their helplessness has been learned, and to break those patterns and to create new ones. That academy is free, and anybody who wants to join it is welcome to join it. Another thing that is happening when you are quitting is your self-image has collapsed. आपकी self-image collapse हो चुकी है. You don't quit because the goal is hard. You are quitting because failure violates your identity. अब मैंने आपको एक बारी बताया था कि हमारे रियल सेल्फ और हमारे आइडियल सेल्फ में एक डिफरेंस होता है। हम बनना कुछ चाहते हैं और हम होते कुछ और हैं। जब हम क्विट करने की कोशिश कर रहे होते हैं या आपको एक अर्ज होती है क्विट करने की, हमारे रियल और आइडियल सेल्फ में इतना डिफरेंस हो जाता है कि उस डिफरेंस को हम एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा माइंड अलाउ नहीं करता ये मानना कि अब नहीं हो रहा हमसे। उसको क्विट कर देना अपने आप को उससे एक रेस्क्यू करने का, एक एस्केप करने का तरीका है वो इनसिक्योरिटी ही है, वो सिर्फ एस्केप, नथिंग मोर। डोंट डू दैट। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, you need to revise that self-image. You need to revisit that self-image. You need to revisit who you are. I must win. I am the kind of person who doesn't stop. I am relentless. I am relentless in my efforts. I will not stop. And like I said in the beginning, always remember, outcome से अपने आप को divorce करना पड़ेगा। अगर कोई लंबा काम कर रहे हो ना आप, तो आपको उस प्रोसेस में मगन होना पड़ेगा। You will have to start liking it. The dopamine has to come from the process itself. Let me give you an example from my own life, something that has हैपन टू मी मल्टीपल टाइम्स। यूपीएससी एग्जाम में जब मैंने एंटर करा तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं एक आउटसाइडर था,
bodybuilder, underdog, with no prospects, no logical prospects of clearing the exam. And the obvious decision, the obvious feeling in my mind was, what am I doing? This needs to be quit. I will not be able to do this. But that self-worth and that ego had stopped me. I had a history of achieving some difficult things. बट वो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन में थी, वो बॉडी बिल्डिंग में थी. वो बॉडी बिल्डिंग और एथलेटिक्स की ड्राइव यहाँ पर ट्रांसपोज हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, आई डिड नॉट नो. बट एक सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग मेरे में जरूर थी, एंड आई अलाउड माई सेल्फ टू गो फर्दर, एंड आई डिड नॉट क्विट एट दैट टाइम, एंड अल्टीमेटली इट वर्कड. बिकॉज द रीजन इट वर्कड इज बिकॉज आई गॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स. एक पॉइंट के बाद लगभग मुझे लगता है 6 से 8 महीने आफ्टर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, 6 से 8 महीने का तो बहुत डिफिकल्ट फेज था. उसके बाद उस जो नेक्स्ट फेज आया उसमें मेरी जो प्लेजर थी, माई रिवॉर्ड स्टार्टेड टू बिकम द बुक्स आई वॉज रीडिंग. इट स्टार्टेड टू बिकम द साइकोलॉजी विच वॉज नॉट ऑप्शनल. इट स्टार्टेड टू बिकम द GS, स्पेशली जो पार्ट्स मुझे अच्छे लगते थे वो मैं जानना चाहता था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये सब चीज़ें स्किप कर गया हूँ लाइफ में, मुझे बताई ही नहीं किसी ने, और मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक इंटेलिजेंट इंसान बनने के लिए. और इसीलिए मैं उसकी वैल्यू भी कर रहा था, मुझे मज़ा भी आ रहा था, जेन्युइनली मुझे मज़ा आ रहा था. चाहे मुझे कोई रिवॉर्ड मिले या ना मिले, चाहे वो UPSC प्रीलिम्स में आए या ना आए, चाहे वो साइकोलॉजी ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए या ना आए, मेरे लिए वो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गई थी. तो जो 1.5-2 घंटा मैं पढ़ता था, या मैं जितना भी मेरे पास टाइम था उसको पढ़ने का, कंज्यूम करने का, यूज टू एंजॉय इट. थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ता था, यूज टू गो बियॉन्ड जस्ट द बुक्स एंड रीड, एंड ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली अल्टीमेटली हेल्प्ड. द सेम थिंग हैपेंड विद दिस होल यूट्यूब जर्नी. यूट्यूब में स्टार्टिंग में आई वॉज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट हाउ इट विल बी परसीव्ड, कैसा दिखेगा, व्यूज़ आएंगे नहीं आएंगे. जब मेहनत करने के बाद व्यूज़ नहीं आते तो बहुत बुरा लगता भी है, टू बी फ्रैंक. पर एक पॉइंट ऐसा आया जब इस प्रोसेस में मज़ा आने लगा. अब मुझे नहीं लगता, आई कैंट इमेजिन माई सेल्फ नॉट डूइंग इट. व्यूज़ आए ना आए मुझे फ़र्क तो पड़ेगा, बट रुकूंगा नहीं, मुझे इतना पता है. बिकॉज अब मैं एम्बेड हो चुका हूँ, आई एम नाउ, अब मैं गढ़ चुका हूँ इस प्रोसेस में. आई हैव स्टार्टेड टू एंजॉय दिस. आई लुक फॉरवर्ड टू इट. आइडियाज़ आते हैं तो मैं लिखता हूँ. स्क्रिप्ट डिसाइड करने से पहले मैं 4 बार ही उसको रिविजिट करता हूँ. मैं अपने उसमें आइडियाज़ इंजेक्ट करता हूँ. जो मैंने किताबें पढ़ी हैं उसका कंटेंट निकाल के डालता हूँ. ये इसलिए मैं नहीं डाल रहा, मतलब आई एम नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर सम आउटकम, बिकॉज आउटकम तो इसका ऐसा कोई इमीडिएट है नहीं. दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म जर्नी. बहुत बार इसको क्विट करने का मन भी करता है, बहुत बार इसको क्विट करने का मन करता है, पर अब नहीं करता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब नहीं करता है. इवन इफ आई गेट स्टूपेंडस सक्सेस, विच इज अनलाइकली, आई विल नॉट स्टॉप. आई नो दिस मच. दैट इज अ स्टेट यू नीड टू गेट इन टू, बट उसके लिए थोड़ी सी ग्रिट चाहिए होती है. You need to be in the process long enough for that to happen. But when that happens, that is magic. And I've invariably seen that this is the 3rd time that it is happening to my life. Actually, it is the 4th time. The first time it happened was when I was doing bodybuilding. It was very difficult. पहली बारी हारा, दूसरी बारी हारा, तीसरी बारी हारा, फिर लगा ये क्या है बकवास, ये तो होगा ही नहीं. Wanted to quit, did not quit. Finally जीत गया and I became Mr. Delhi. एक वैलिडेशन मिली, एक अवार्ड मिला, एक टेंजिबल चीज़ थी बोलने के लिए जो आज तक बोल रहा हूँ. It helped. It was a history. It was evidence that it works. Persistence works. Grit works. सुनने में एक अलग इफेक्ट होता है, करने में बहुत अलग इफेक्ट होता है. आपके साथ एक भी जेन्युइन, लेजिटिमेट, एक्चुअल विक्ट्री अगर हो गई और आपने उस विक्ट्री पे क्लिंग कर लिया और आपने उस प्रोसेस को एक इन्फिनिट लूप में डाल दिया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. एनीथिंग यू वांट विल बी एट योर फीट. इट विल टेक अ कॉस्ट. आपसे एक कॉस्ट निकालेगी नेचर और दुनिया, बट आप उस कॉस्ट को देने के प्रोसेस से अगर अग्री कर चुके हो, आप बोल रहे हो जो करना है आप कर लो, मेरे साथ जो करना है कर लो, मैं देख लूंगा, मुझे मज़ा आ रहा है, क्या कर लोगे मेरा आप, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल लाइफ डू टू मी, और मार देगी और हार जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, आई एम एंजॉइंग इट. डू और डाई वाली सिचुएशन आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगी. वंस दैट हैपन्स देन यू आर अनस्टॉपेबल, एंड वियर्डली द गोल इज अचीव्ड. जैसे ही हम इस स्टेट पे आते हैं, देन द गोल इज अचीव्ड. दिस इज हैपनिंग, दिस इज द 4th टाइम इट इज हैपन. अगर हम इस यूट्यूब की जर्नी को सक्सेस मानते हैं तो ये 4थी बारी हो रहा है. दैट इज वन केस स्टडी इन फ्रंट ऑफ यू. अनदर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, कॉर्टिजोल. लॉन्ग टर्म प्रेशर, चाहे एग्जाम हो, चाहे कोई डेट हो, चाहे सोशल शेम हो, कॉर्टिजोल स्पाइक करती है. कॉर्टिजोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन. एक्सेस कॉर्टिजोल विल डैमेज द हिपोकैम्पस, जहाँ पर मेमोरी और लर्निंग काम करती है. एंड ऑल्सो इट विल इंटरफेयर विद द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. हियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन which allows us to focus, which allows us to remain focused and strategic for a long period of time. क्या होगा इससे अगर ये थोड़ा सा भी impede हो गया तो सबसे पहले तो फोकस करना मुश्किल हो जाएगा. impaired focus, fatalistic thinking,
Mental fog. Have you had brain fog? I'm pretty sure you have had brain fog. Brain fog is that state जब आपके अंदर शायद motivation है, शायद desire है, but somehow your brain is not functioning. It is not executing what you wanted to execute. That's what happens with too much cortisol. And you start to think all those wrong justifications come to your mind. It's not worth it. Maybe I was never meant to do this. That's nonsense. If you have done your homework, अगर आप homework करके उस चीज में गए थे, तो then it is meant for you. It is not true. That is your brain's chemical siege. You have understood to some extent now, I hope, what is dopamine doing, what is cortisol doing, and you will be able to muscle through it. Another very, very important thing you need to understand, and this cannot be overstated. Willpower पर depend नहीं किया जा सकता है. Brute willpower does not work. Brute willpower is a currency. इस पर भी बहुत रिसर्च है. रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग है. रिसर्चर्स ने लोगों की विल पावर टेस्ट करने के लिए उनको कोई डिफिकल्ट काम दिए जो विल पावर उनकी खींच ले. उसके बाद उनको एक और काम दिया. उन्होंने देखा 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके कि जिन लोगों को हमने विल पावर जिनकी डिप्लीट नहीं करी थी वो दूसरे टास्क में बहुत बढ़िया कर रहे हैं उन लोगों से. विल पावर एक करेंसी की तरह होती है. ये उस चीज़ का एक कंक्लूजन है. सुबह हमारे पास ज़्यादा होती है, धीरे धीरे हम डिसीजंस लेते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करते हैं, डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं. विल पावर डिप्लीट होती है धीरे धीरे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे इट इज नो मोर अंटिल इट इज रिप्लेनिश्ड अगेन. सो इफ यू आर फीलिंग लाइक गिविंग अप, इट माइट बी बिकॉज द विल पावर हैज डिप्लीटेड. And there is of course the neurochemical solution and the neurochemical explanation for the dopamine and the serotonin, but what's happening observably is that this is why you break your fast in the evening. This is why you cheat on your diet in the evening. This is why you end up binging in the evening when you are done, when your willpower is not there to help you. So you need to replenish your willpower and realize that brute force alone will not get you where you want to go. You need a system of accountability to keep you in check. What are the systems though? कैसे? What are your psychological weapons? How are you going to fight this? Shrink the battlefield. When you are overwhelmed, do not solve life. Baby steps. Your focus immediately brings from the larger goal to the next immediate step. You take the next 5 minutes only. You take one day at a time only. After that, you will use identity reinforcement. You will tell yourself what kind of person you are. You will self-author yourself. You will say, I am the kind of person who never quits. And you will find evidence in your past, and you will find it when you look, which will suggest to you that you are in fact that type of person, that you did not quit in that equation. Third, आप अपने efforts को ritualize कर दो. Every day you build some discipline. The more discipline you bring, the more you show up, the more habitual discomfort becomes your habit. आपके brain के neural pathways actually rewire करके आपको ऐसा बना देंगे जैसा आप बनना चाह रहे हो, और आपको just showing up will start to give that reward. Every day just going to the gym, even if you don't feel like it, will feel like a reward, and once you go there, you will feel good, and that feeling of goodness will form a loop. A very interesting strategy comes from behavioral science. It comes from nudge theory, actually behavioral economics. It says skin in the game. Skin in the game सुना होगा आपने. Skin in the game means मेरा जो भी गोल है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो क्विट ना करूँ, और मुझे पता है कि क्विटिंग की पॉसिबिलिटी है क्योंकि गोल डिफिकल्ट है, तो मैं अपना कोई स्किन इन द गेम करने की कोशिश करूँगा जानबूझ के, कॉन्शियसली. मैं वेट नहीं करूँगा कि कोई और आके करे. मैं हो सकता है कुछ पैसे कमिट कर दूँ. एक तरीका स्किन इन द गेम बढ़ाने का है कि मैं अपने गोल को थोड़ा सा सोशल कर दूं. मैं बता दूं कुछ लोगों को कि मैं ये करने वाला हूं. आई विल गो टू द जिम एवरी डे, आई विल लूज वेट, वट एवर. एंड बाय डूइंग सो the probability that you will quit will reduce because of social shame, because of peer pressure, because of the feeling that if I quit, what will they think of me? It matters to us. It matters to us what people think of us, and we should use this. We should use this to keep us motivated because it will work as a guardrail. जब आप गिरोगे अपने ट्रैक से तो आपको बचा लेगा. आप बोलोगे नहीं ये कॉस्ट नहीं दे रहे मेरे को, शर्म, सोशल शेम नहीं चाहिए मेरे को, मैं अपना आई विल गो टू द जिम, दैट इज़ बेटर. बेइज्जती होगी, वो लोग बोलेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें आपको रुकेंगी. जब आप अपने से बात करते हो तो आपके अंदर से ज़्यादा लाउड आवाज़ कौन सी है? आई एम द पर्सन हु इज़ रिलेंटलेस. आई एम अ पर्सन हु डज नॉट गिव अप. दिस इज़ द टाइप ऑफ रेपुटेशन आई हैव. दिस इज़ हु आई एम. लूजिंग दैट रेपुटेशन इज़ नॉट परमिसिबल. मैं वो लॉस ऑफ फेस नहीं कर सकता. You don't quit when your ego gets in the way. That I think is the real superpower. If you can get your ego where it stops you from quitting, especially something which is good, and I think then you have really put your real skin in the game. क्योंकि हमारी actual skin in the game is not that $50-100. Our actual skin in the game is our ego, is our self-image. If you leverage that, then there is actually no stopping you. I hope these techniques were useful. If you are thinking of quitting, stop. Give yourself a pause. If you are still going to quit, you can quit, but not now. Not now. Give it 5 minutes, 10 minutes, think about these things,
यूज वन और टू ऑफ दोज टेक्निक्स। अगर आपका जो भी गोल था जिसको आप क्विट करना चाह रहे हो वो इंपॉर्टेंट था, तो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर रेजोनेट करेगा, आपको रोक देगा। एंड टू हेल्प फर्दर, like I had said before, Syllabus of Life Academy is all about this. It is all about personal growth. It is all about personal development of a manner, of a fashion, of a way, of a format that has never been done before. And it is free. The link is in the description. You are welcome to join the Syllabus of Academy. Anybody who is going through this will be taught and helped for free. Thank you very much, and I'll see you next time.